Varshney, who is the National Organizing Secretary, Arogya Bharati, with the sapling and the memento as a token of gratitude. I felicitate our guest respected Dr. T.N. Dwivedi sir, who is the Secretary, Arogya Bharati, Mirzapur, with sapling. Dr. Ashish Latare sir, to kindly felicitate Dr. Vivek Singh sir, who is the Secretary, Arogya Bharati, Mirzapur. Dr. M.K. Nandi sir. Here with you as organizing secretary in the inaugural session of this one-day seminar, and taking this opportunity brief about this seminar that is titled as Current Health Challenges and Solutions through Millet and Millet-Based Products, which is organized by RGSC BHU in association with Arogya Bharati Kasi Prant Mirzapur as an orientation of International Millet Year 2023. I taking this opportunity to express my views on International Millet Year. The United Nations General Assembly at its 75th session in March 2021 declared the year 2023 as International Year of Millet. Processing technologies, lack of food subsidies and inconvenience in food preparation which make millets more obsolete as compared to the other cereal crops. Millet can be grown in arid land with minimal input and are resilient to the climate change. They are therefore an ideal solution for countries to increase self-sufficiency among students and also for exchange of ideas among top-notch scientists, researchers, policymakers, planners, experts and representatives from the public and private sectors and other stakeholders. Technical session dealing with the poster presentation that is already mounted outside the corridor, and the second session deals with the lectures delivered by four eminent speakers from Arogya Bharati. Proceeding to the next, I would like to request Dr. M.K. Nandi sir to give the welcome address for this seminar. Present here, distinguished chief guest of today's seminar, Dr. Ashok Kumar Varshney, respected Professor in Charge Sir, RGC, and President of the today's seminar, respected dignitaries on the dais, respected faculty members of RGSC, and dear students. On behalf of the organizing committee, I, Dr. M.K. Nandi, Associate Professor in the Department of Medicinal Chemistry, took this opportunity to welcome you all to the scientific seminar, Current Health Challenges and Solutions through Millet and Millet-Based Products, on the occasion of International Years of Millets, that is organized by the RGSC BHU in association with Arogya Bharati Kasi Prant. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest, Dr. Ashok Kumar Varshney, who is working as a National Organizing Secretary of Arogya Bharati, also a member of Advisory Board in the Ayush Ministry, Government of India. He completed his PhD in 1986 in the field of biochemistry from Allahabad University, and also worked as an assistant professor during this period. Since 1986, he is involved in social work, and since 2012, working as a National Organizing Secretary of Arogya Bharati. I heartily welcome you, sir, to this today's scientific seminar. Also, I welcome our most well-known person of this campus, our Professor in Charge, sir, Professor B.K. Misra, sir, who is a distinguished professor of the Institute of Agriculture, BHU, and an eminent scientist in the field of genetics and plant breeding. He is a very open-minded person and down-to-earth person, always with us. He always encourages us to conduct scientific activity at our campus that will be benefit to students of RGSC. And my opinion is that during his period as a professor in charge, most employees and students are happy at campus. I welcome you, sir, to this today's seminar. UP BHMS is awarded with the Lal Bahadur Shastri Ratna Award. I welcome you, sir, to this. I also welcome Dr. Sandeep Srivastava, Joint Secretary of Arogya Bharati Kasi Prant,
who is a homeopathic physician and awarded with Nation Building Award. Welcome you, sir. I also welcome Dr. T.N. Dwivedi, sir, who is the joint with the Secretary, Arogya Bharati Mirzapur. He is a dental surgeon. Welcome you, sir. I also welcome Dr. Vivek Singh, Joint Secretary of Arogya Bharati Mirzapur. He is an Ayurvedic doctor. You welcome, sir, to this center. In order to achieve our nation overall development, it is important everyone should be healthy and fit. And I am sure today's seminar will help us to maintain our health, and that is essential for nation building. I am also To brief about today's seminar and also All the dignitaries are welcome to the RGSC PHU program, one day scientific program in the millets. Today we are discuss about the millet and millet products and oral prevention, how to prevent it through the millet and millet based. First of all, Dr. T.N. Dwivedi, Secretary of the आरोप ये जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो 2023 मनाया जा रहा है, मिलेट बेस्ड बनाया जा रहा है कि मोटे अनाज को हम लोग प्रमोट करें और मोटे अनाज का हम लोग सेवन करें, जिससे कि आगे आने वाले बहुत सी डिजीजेज हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज ये वन डे सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम ऑन द मिलेट बेस्ड व्हाट आर द मिलेट फैक्ट। तो इसका तथ्य ये है कि मिलेट जो हमारे प्राचीन काल से जो 2000, 3000, 4000 ईयर्स पहले जो हमारे मोटे अनाज का बहुत ही प्रचुर मात्रा में एशिया में इसका किया जाता था उत्पादन। और अब क्या है कि मिलेट जैसे जैसे हम लोग मोटे अनाज को भूलते जा रहे हैं, तो अब इसकी खेती उत्पादन इस सब पे बहुत कमी देखने को मिल रही है और उससे हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मिलेट्स आर बिलीव्ड to be the first demonstrated cereal grain. They are the most likely the first cultivated in the Asia more than the 4000 year. हमारा भारत देश बहुत ही मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को उत्पादन करने में सक्षम है और एशिया में देखा जाए तो 2000 दूसरे नंबर पे ये अपना इंडिया है, जो चाइना नाइजीरिया के बाद बहुत ही इसको देखने को उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाता है। हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं कि क्या है मिलेट। अगर देखा जाए तो इसमें से बहुत से लोग जो हैं कि मिलेट्स में कितनी वैरायटीज़ हैं। हमारे मिलेट्स में मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स दो तरह के हैं। अगर देखा जाए तो सॉर्गुम जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉर्गुम में हमारा जो है मेजर मिलेट्स है, जो जिसको हम ज्वार भी कहते हैं। और ये पहले तो हम लोग जान लें कि क्या क्या हमारे मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स हैं। तो सॉर्गुम और साथ ही साथ हमारा सॉर्गुम के बाद फिंगर मिलेट्स, रागी, बार्नयार्ड, बकव्हीट, फिंगर मिलेट्स, अमरनाथ जो इसको हम राजगिरा बोलते हैं, जैसे आप लोग जनरल बोलचाल में रामदाना बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे रामदाना क्या होता है, जो हम लोग देखते थे, उसको हम लोग अमरनाथ या राजगीर बोलते हैं। बार्नयार्ड और साथ ही साथ सनावा बोलते हैं हम लोग। और फिंगर मिलेट्स में क्या है, रागी। दिस इज द हेल्पफुल फॉर द diabetes also. They are the rich sources of the calcium, high fibers, minerals, and also the vitamins in the रागी जिसको हम लोग फिंगर मिलेट बोलते हैं। एंड फॉक्सटेल मिलेट्स, कगनी, इसका बहुत अच्छा नाम। ये कगनी आजकल हम लोग जान ले इसको बहुत, ये सब मिलेट्स हैं। कोदू है। कोदू को हम लोग जो जनरल जैसे हम लोग देखते हैं कि कोदू का भी बहुत डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इसमें डाइटरी हाई फाइबर्स होते हैं। और जैसे नवरात्रि वगैरह में भी देखते हैं हम लोग इसके आटे का उपयोग करते रहते हैं। कुट्टू का एंड लिटिल फिंगर्स, लिटिल मिलेट्स एंड द पर्ल मिलेट्स एंड द परसो मिलेट जिसको चेना बोलते हैं। सॉर्गुम, ज्वार, इसका भी बहुत उपयोग है। और मेजर मिलेट्स में ज्वार आता है आपका। सीधे हम ये बेसिक चीज़ों को जान लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को भूल रहे हैं कि क्या है। क्योंकि हमारा जो देश में जो प्रोडक्शन है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और अब क्या है, गेहूं और चावल के पीछे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें पाई जाती हैं, गेहूँ चावल में नहीं पाई जाती हैं। उसका अगर हम अभी न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस देखेंगे तो हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो अगर देखा जाए तो मिलेट्स में हमारे हाई प्रोटीन, हाई फाइबर्स, हाई कैल्शियम, हाई आयरन और साथ ही साथ ग्लूटेन फ्री
ग्लूटेन फ्री का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी अगर बीमारी, अगर डायबिटीज देखते हैं, डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन, लीवर एंड ऑल द सेलिक डिजीज एंड IBS, बहुत से ऐसे डिजीज हैं जिसमें ग्लूटेन फ्री डाइट्स का हम लोग उपयोग आजकल कर रहे हैं। तो साथ ही साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप लोग जानते हैं कि जिन डायबिटीज मरीजों का वो होता है उनको हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या होता है कि अगर हम जैसे अगर कोई भी खाना खा रहे हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा हाई, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देगा, और ब्लड शुगर बढ़ेगा तो उसमें डायबिटीज के सिम्टम्स बट नेचुरल दिखने लगेंगे। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या करेगा, हमारा ब्लड शुगर को, अगर फूड हम ले रहे हैं स्टमच में जाने के बाद उसको धीरे धीरे पार्ट्स में तोड़ के ब्लड को, शुगर को हमारे ब्लड में कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमारा क्या होगा, शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को इस समय बहुत इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें आगे इसको प्रमोट करना है और आगे इसको ले चलना है। न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस अगर देखा जाए तो फिंगर मिलेट्स, जिसको कि जो टोटल डाइटरी फाइबर्स इसमें 11.2, जो कि अगर हम देखें और गेहूँ, व्हीट और राइस से ये मच मोर है। और अगर देखते हैं, अगर हम फॉक्सटेल एंड पार्सो मिलेट्स, इसमें भी प्रोटीन की एसेंशियल मात्रा 12.5 है। मिनरल्स एंड आल्सो विटामिन्स। और बेनयार्ड, इसमें भी अगर देखा जाए तो फैट बहुत ज़्यादा नहीं में अगर मिल रहे हैं तो वो हम आगे चल के कुपोषण के शिकार हो ही नहीं सकते हैं। तो नो डाउट हमें आगे मिलेट बेस्ड और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। वी आर द नाउ इन द how to prevent oral disease, and firstly we come on the what are the problem caused the, basically I am the dental surgeon, so कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को हम डेंटल से भी रिलेट करना चाहेंगे। इसमें यह है कि अगर हम स्वच्छ मुख अगर रख रहे हैं तो स्वस्थ शरीर बिल्कुल रख सकते हैं। अगर स्वच्छता का आप सब जगह ध्यान देते हैं तो इसमें भी हमें बहुत आगे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो व्हाट द प्रॉब्लम कुड बी पुअर डेंटल हाइजीन, पूरा डेंटल हेल्थ कॉजेस। तो फर्स्ट वी सीन इन द हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज कैसे होता है, हार्ट डिजीज से कैसे कोरिलेशन डेंटल का भी है, तो उसको भी बता देते हैं कि ब्लीडिंग गम्स, अगर जहाँ पे देखते हैं कि ब्लीडिंग गम्स हैं वहाँ प्लाक और टाटर जमा हुआ है आप लोग के माउथ में, तो वो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जनरेट करते हैं जो हमारे गम्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में पहुंच जाते हैं, और हार्ट में पहुंचने पे भी आर्थरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस कर सकते हैं। तो बहुत ही इसका रिलेशंस हमारे डेंटल से भी होता है। तो ओरल हाइजीन को हमें बहुत ही अच्छे से रखना है। माउथ क्या देखते हैं, अगर पूर्वांचल में तो बहुत सी चीज़ें ऐसे पान गुटखा और ऐसे लोग यूज कर रहे हैं कि इसको भी हमें प्रिवेंट करके माउथ को अगर देख 2 टाइम हम लोग को ब्रश जरूर रेगुलर करना है। ईट हेल्दी एंड हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अपने हमें शुगर वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो गुड शुगर्स को यूज करना है। जो गुड शुगर्स हमारे होते हैं, रॉ मटेरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसमें ज़्यादा होते हैं। और जो चॉकलेट और टॉफी और बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें बहुत ही शुगर, और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उसमें ये धातु को बहुत ही नुकसान करते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। लिमिटेड इंटेक में शुगर लेना चाहिए। और साथ ही साथ डू नॉट यूज द टोबैको एंड ओवर अर्कनेट एंड द ब्रीफ लीफ, ये सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। Health prevention, dental health prevention by intake of millet. Now I would. आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये स्लाइड सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बनाई गई, थोड़ी लंबी जरूर है, बट मैं इसको समअप करूँगा छोटे में, क्योंकि मैं इसमें से बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ और भी स्पीकर हैं, दे विल टॉक ऑन दिस टॉपिक। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जैसा कि हम सब लोग को पता है कि हम लोग इस साल थोड़ा इसको मना रहे हैं, ठीक है। और इसको जनरल असेंबली 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि हम 2023 में इसको सेलिब्रेट करेंगे, और इंडिया को इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कैसे इसको आप इसको आगे ले जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। मिलेट्स हम सब लोग जानते हैं, इसको न्यूट्रिसीरियल्स भी कहते हैं। ये उसके सारे डेटाज हैं। यहाँ हम मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट और पूरा विंग है यहाँ पे काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे की स्पीकर इस पर और एम्फसाइज करेंगे, और हमारे बीच में MD आयुर्वेद है तो वो भी कुछ इस पर बोलेंगे, तो मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है। फिर भी ये एक स्लाइड है, मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ये सारे उसके मेजर और माइनर मिलेट्स हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने शुरुआत में बताया था। ये सारे 6 स्मॉल मिलेट्स हैं जिनके ये सब नाम हैं, और ये फोटोग्राफ्स हैं। ये ग्लोबल सिनेरियो है।
ठीक है। हम इस ग्लोबल सिनेरियो में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अफ्रीका में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एशिया में भी हो रहा है लेकिन उससे रिलेशन में कम हो रहा है। तो अफ्रीका में एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन 489 लाख हेक्टेयर है, प्रोडक्शन 423 लाख टन का है, जबकि एशिया में कम है, ठीक है। तो फिलहाल ये एक ग्लोबल सिनेरियो है, थोड़ा सा मैं इसको बस कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट है इंडियन सिनेरियो। तो इंडियन सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जो ये 5 स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट्स हैं, ये ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं, मतलब प्रोडक्शन में मिलेट्स का ज़्यादा होता है। और ये इसके बगल में स्टैटिस्टिक्स हैं उसके कि बाजरा कितना होता है, ज्वार कितना है, रागी कितना है, स्मॉल मिलेट्स है। फिर भी अगर ओवरऑल हम देखें तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 80% ऑफ एशियाज एंड 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। मिलेट्स न्यूट्रिशन अभी डॉक्टर टी एन द्विवेदी जी ने उस पर एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू मच टॉक ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बताया गया, फैक्ट्स हैं, ये कंपोजिशंस हैं सारे उसके। मिलेट्स को एज ए फूड यूज तो हम लोग करते ही हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं डिस्प्ले में, और एज ए फूडर भी, ठीक है। बहुत से कंट्रीज में इसको हम जानवरों के लिए भी चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स, वेट लॉस, कोलन कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी, स्लीप और ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्रैम्प्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा इसका रोल है। यहाँ पे मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। हम एक लोगो नारा लेके चल रहे हैं, चूंकि मैं आरोग्य भारती से हूँ तो उसमें हम लोग इस बार अपने इसमें पूरे थ्रू आउट ईयर हम मिलेट्स पे काम करेंगे, फूड पे सुपोषण। हम यहाँ बैठे हैं तो आज हम यहाँ से लेके क्या जाएं, हम कैसे इसको करेंगे, कैसे इसकी प्लानिंग करेंगे, हमको क्या करना है, हमारी क्या भूमिका है इस पूरे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने में, ठीक है। तो इसके लिए 7 सूत्रास हैं, ठीक है। तो इसमें इनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स पे ध्यान देना है, अवेयरनेस करना है, इंटरनेशनल आउटरीच एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। इसलिए हमें स्टार्टअप्स पे ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ इसकी एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करना है, हमें इसको और बढ़ाना है। यहाँ पे नीचे लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन मिलेट इकोसिस्टम विल इंपैक्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। चेन अभी तक बन चुके हैं, इसको आगे और ले जाया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन मिलेट रिसर्च, इसको ये इसमें एक हैज इंक्यूबेटेड 250 स्टार्टअप्स, ठीक है। और लगभग 6.2 करोड़ इसको एमएससीज, क्योंकि हमें ये काम तो सौंपा गया है तो हमको आगे इसको ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, फोरम में कैसे इसको ले जाएंगे, फैसिलिटेटिंग डायलॉग्स बिटवीन की प्लेयर्स एंड इन्वेस्टर्स पे भी बहुत ध्यान देना है हमको। ये हम कर रहे हैं, सरकार भी इसको बहुत तेजी से आगे ले जा रही है, और जिसमें वैल्यू एडिशन करना है, प्रोसेसिंग, रेसिपी, ये वैसे ही हमको ये और भी इंडिया में सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फॉरेन में और भी हम कुछ कर सकते हैं जिसमें इंडियन डायस्पोरा का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट फॉर फूड फेस्टिवल, ऑल एम्बेसीज टू सर्व मिलेट्स, ठीक है। डोमेस्टिक आउटरीच में हम क्या कर सकते हैं, फूड फेस्टिवल्स, साइक्लोथॉन्स, मैराथन्स, मिलेट रेसिपी अवेयरनेस, कुकिंग वर्कशॉप्स, conferences by industry association, food processing interventions by industry, millet state to adopt millet showcase। और खासतौर से हम इसमें जो हमारे यहाँ मिड डे मील प्रोग्राम चलता है उस पर हमें बढ़ाना है, आंगनबाड़ियों में इसको हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, बफेज करेंगे प्रमोट, और खासतौर से FSSAI से स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए करेंगे, और साथ ही साथ मिलेट चैलेंज ऑर्गेनाइज कर, और इस तरह से ये एक Next, I would like to request Dr. Vivek Singh sir to share his views and thoughts with special reference to International Millet Year 2023. आप सभी लोग मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का टॉपिक है लाइफ स्टाइल डिजीज एंड मिलेट्स के ऊपर मैन है, तो हम बताना चाहेंगे मिलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ स्टाइल डिजीज होती क्या है और क्यों होती है। हमारे पास में ये देखा जाएगा कि 4 फैक्टर्स मेनली होते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडिफिएबल लाइफ स्टाइल बिहेवियर्स। वो क्या है, स्मोकिंग या इस तरह की कोई भी व्यसन हो, जो अल्कोहल हो चाहे स्मोकिंग हो, इस तरह की। अगला है अनहेल्दी डाइट्स। अनहेल्दी मीन्स क्या है कि क्या हमारे पास जो चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, उससे हम हट करके जो खाते हैं वही है अनहेल्दी डाइट्स, जैसे इसमें कुछ पिक्चर्स में दिखाया भी गया है। अगला है फिजिकल इनएक्टिविटी देन स्ट्रेस इज मेन कॉजेज, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द लाइफ स्टाइल डिजीजेज। फिर होती क्या है लाइफ स्टाइल डिजीजेज, ये हैं जैसे कि आप इनके बारे में परिचित भी होंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, स्ट्रोक्स है, डायबिटीज, ओबेसिटी, then metabolic syndromes like IBS, Crohn's disease, these are some of the examples of the metabolic syndromes. Then chronic obstructive pulmonary diseases, lung problems, and arthritis, musculoskeletal diseases, and chronic neurological disease also comes under the लाइफ स्टाइल बॉर्न डिजीजेज का क्या कितना प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि 2021 का ये डाटा है, इसमें बताया गया है कि डायबिटीज से देखा जाए सिर्फ तो 10 में से 1 लोगों को करीब डायबिटीज निकल के आती है। इसी तरह से हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज को देखा जाए तो 3 में से 1 लोगों को करीब कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से सिनेरियो बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो यदि लाइफ स्टाइल डिजीजेज की वजह से डेथ रेट क्या है, देखा जा रहा है कि 1990 में 37% लोग लाइफ स्टाइल डिजीजेज की वजह से डेथ होता था,
अब यह 2016 तक जाते जाते 61.8% बढ़ के आ गया। तो ये दिन पर दिन इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है कि ज़्यादातर जो डेथ है उसका मेन कॉज हो रहा है लाइफस्टाइल डिजीज। तो इतनी डोमिनेंसी से तेजी से बढ़ता चला जा रहा है लाइफस्टाइल डिजीज। तो ये अब हम देखना चाहेंगे कि आयुर्वेद में लाइफस्टाइल डिजीज को क्या बोला गया है। तो लाइफस्टाइल डिजीज को आयुर्वेद में संतर्पण जन्य व्याधियां बोला गया। संतर्पण जन्य मीन्स होती है ओवर ईटिंग, संतर्पण ज्यादा तर्पण करने से। हम ज्यादा चीजें तर्पित करना मतलब किसी को पानी देना या खिलाना पिलाना, ये सब होता है। यदि अपने बॉडी को भी आप ज्यादा तर्पित करते हैं तो इसी को हम ज्यादा तर्पण, ओवर ईटिंग की वजह से जो बीमारियां होती है उसी को बोलते हैं संतर्पण जन्य व्याधियां। ठीक है, इसमें ज्यादातर आयुर्वेद के बच्चे बैठे हुए हैं, फार्मा के हैं, तो उनके लिए खास कर ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग सभी लोग समझिएगा इसको। संतर्पण वही है जो ओवर ईटिंग की वजह से होती है। इस तरह की क्वालिटी वाले डाइटिक रेजिम उसको कोई खाए तो स्नेक मीन्स ज्यादातर फैटी चीजें खाए। गुरु मीन्स हैवी, जैसे पनीर हुआ ना वो हैवी हुआ, रेड मीट हुआ ये भी हैवी हुआ। जो डाइजेशन में हैवी हो वो क्या है, गुरु। तो गुरु, स्नेक, गुरु, मधुर, गुरु, पिच्छिल, इस तरह के डाइट को खाने की वजह से संतर्पण जन्य व्याधियां होती है। जो आपने देखा लाइफस्टाइल डिजीजेज, उनका भी कॉजेज यही है। अनहेल्दी डाइट मीन्स यही सब ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना। तो लास्ट में होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या निकल के आती है। तो इसमें इन्होंने बोला कि तंद्रा, क्लैबियम, अतिस्थौल्यम, देख रहे ना, इसमें कॉजेज बताया गया। ये 5000 साल पहले की साइंस में भी बताया गया, मतलब आयुर्वेद में भी बताया गया था कि आप इस तरह के डाइटिक रेजिमेंट्स खाते हैं तो ये बीमारियां होने वाली हैं। मतलब लाइफस्टाइल की जो सिम्टम्स मिलते हैं करीब करीब सभी बीमारियां वो संतर्पण जन्य व्याधि में आती है। कॉजेज देख लीजिए, अनहेल्दी डाइट है, चेष्टा द्वेषी। चेष्टा द्वेषी मींस फिजिकल इनएक्टिविटी ना, कोई भी एक्सरसाइज ना करना, वो क्या है, चेष्टा द्वेषी। दिवा स्वप्न, ठीक है, शय्यासन सुख है। तो ये सब कुछ कॉजेज है जो सीएम मैच करते हैं कि जो आजकल के लाइफस्टाइल डिजीज के जो कॉजेज थे वही हैं जो पहले कि हम फिर इन संतर्पण जन्य व्याधियों को मींस लाइफस्टाइल बॉन्ड डिसऑर्डर्स को हम कैसे रोक सकते हैं आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए इसमें बताया गया है कि जो भी ट्रीटमेंट का, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे डाइट से कैसे कंट्रोल करना है। इन्होंने बोला है कि प्राय रुच अन्न सेवनम। तो लाइफ स्टाइल जो संतर्पण जन्य व्याधियां हैं या लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम डाइट में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें हमें रुच अन्न का सेवन करवाना है। रुच अन्न मींस जिसमें फैटी कंटेंट कम हो। इस तरह का जो ड्राइनेस, रुच के मतलब कॉन्सेप्ट हमारे पास स्निग्धता उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं स्निग्ध डाइट। ठीक है, जो रुचता उत्पन्न करे उसको क्या करेंगे, रुच मिल्स है। या उसको हमारे जो आयुर्वेद में क्लासिफिकेशन बताया गया आहार द्रव्यों का, वहाँ पे 12 मतलब धान्य वर्ग आता है। ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है आपको धान्य वर्ग में। ठीक है, तो धान्य वर्ग में ही आपको सिर्फ कुधान्य जो है ना, क्षुद्र धान्य जिसको बोलते हैं, तृणधान्य भी बोला गया है। तो ये सब जो है उनकी क्वालिटी तृणधान्यम, लघु अनुष्णम, कुछ लोग इसको सुषुम्न भी बोल रखा है, कटु पाकम कसायकम, लेखनम, मधुरम, रुचम ना, उसका जो प्रोटीन है वो डाइजेशन में इजी है, वो ज्यादा स्टिमुलेट हो सकती है। तो ये हमें विचार करना है। आप आयुर्वेद वालों को या जो हमें सोसाइटी में बताना है कि हमें जो भी खाना है ना उसको थोड़ा सा विचार करके बताना है। तो अभी मिलेट्स जो है सबको क्या खिलाना है, तो मिलेट्स में हमें ध्यान देना है कि जो कुपोषण के शिकार हो, जिनमें ड्राइनेस बढ़ा हुआ है, रुचिता ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनमें हमें मिलेट्स को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना है, कुछ मिलेट्स को छोड़ करके, वो हम अभी बताएंगे। जैसे हम बाजरा बताएं तो बाजरे को आप खिला सकते हैं, ठीक ना। उष्ण भी जो होता है तो अग्नि को थोड़ा सा बढ़ाने वाली होती है, लेकिन ज्यादातर फायदा होती है बच्चों में। जैसे हमें प्रिस्क्राइब करना होता है तो हम बोलते हैं ज्वार का इंडिकेशन करिए, क्योंकि वहां पे स्निग्ध है, वो सिर्फ एक ज्वार है और 1-2 कंगनी है, उसमें बताया गया रागी जिसको आप बोलते हैं। तो रागी जो है ना वो क्या है, इसमें स्निग्धता ज्यादा है। अच्छा ये देखिएगा, थोड़ा सा कंपैरिजन करने में टिप में होता है कि हम रुचिता किसके रिलेशन में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयुर्वेद में हमेशा रुच जैसे बोला गया है तो किसी के कंपैरिजन में बोला जाता है। तो किसके कंपैरिजन में बोला जाता है, तो ये हम शुद्ध धान्य वर्ग की बात करें, बाकी सब राइस की वैरायटी से के कंपैरिजन में ये रुच कफ, ये 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, इसको 3 ह्यूमर्स बोलते हैं। तो वात को बढ़ाने वाला ये होता है, ठीक है। तो करेगा फिर पित्त और कफ को एग्रीवेट करने वाले थे, क्योंकि उष्णवीर्य है और इसमें क्या है, एग्रीवेट नहीं, पैसिफाई करने वाला है। कफ और पित्त को पैसिफाई करेगा, वात को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है ना। तो मिलेट्स में ये ध्यान देने वाली बात है। तो जिनको पित्त और कफ डिसऑर्डर्स है उनमें ही हम प्रिस्क्राइब करें, मतलब ओबेज पर्सन हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, कार्डियोवास्कुलर मतलब लिपिड जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस वाले पेशेंट में लिपिड बढ़ना मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना मतलब स्निग्धता ज्यादा बढ़ना, ठीक ना। तो वहां पर हम प्रिस्क्राइब करेंगे मिलेट्स को, ठीक है ना। तो ज्यादातर आपको 90% डिजीज तो ज्यादातर आपको लाइफस्टाइल बॉन्ड डिसऑर्डर से मिलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर इसको आप कहते हैं, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं आप मिलेट्स के जो आपको फोटोग्राफ में दिखे भी हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया गया है कि कौन कौन से किस वैरायटी होती है। श्यामा का इसमें का ये रेफरेंस आया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अभी टाइम बहुत कम है, अभी थोड़ा सा नोटिस भी है मेरे पास। तो कोदो मिलेट्स भी है, इसकी क्या क्वालिटी है, कंगनी चेना, ये सब आप जानते हैं इसके बारे में, आप थोड़ा सा रेफरेंस देख सकते हैं। लेकिन सब में ज्यादातर में रुचिता बढ़ा हुआ है, सिर्फ ज्वार और कंगनी को छोड़ करके, मीन्स कोदो को छोड़ करके। कुटकी बोला गया है कट्टू को, ध्यान दीजिए। रागी के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया, मधुली ये के नाम से आया हुआ है, रागी को मधुली के और शीतल है। तो हमें बच्चों में प्रिस्क्राइब करना होगा, जिनको अभी तो पोषण की जरूरत है ना, हम दे देंगे मिलेट्स तो उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, फिर बच्चों का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हमें देना भी है बच्चों, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम में हो रहा है कि आपको मिलेट्स भी प्रिस्क्राइब करवाना है, उसमें 1-2 दिन चलाना है। तो उनमें हम प्रिस्क्राइब क्या करेंगे, रागी खिलाई या तो ज्वार खिलाइए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मधुर और स्निग्ध गुण पाया जा रहा है।
अच्छा, आहार फॉर द रेगुलर यूजेज, देख लीजिए जो चरक सूत्र 5वें चैप्टर में बताया गया है कि कुछ चीजें हैं जैसे षष्टिक साली, ये श्रेष्ठ धान्य वर्ग में बताया गया है। इनको ही खाने के लिए बोला है कि रेगुलर आपको खाना है तो साठी चावल या तो साली चावल को खाइए, आपको मिलेट्स को हर दिन नहीं खाना है, ठीक है ना, ये पहले भी आचार्यों ने बता रखा है। तो ऐसा नहीं कि कभी खाना ही नहीं है, ऐसा तो इन्होंने बोला ना, शड्रस का सेवन करना चाहिए, हर द्रव्यों का आपको सेवन करना चाहिए, लेकिन नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उसको भी मतलब आजकल जो पहले के जमाने में लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होती थी, उतना स्थिरता नहीं बढ़ा होता था, तो ज्यादातर लोग इसलिए संस्कार से बोला गया है, संस्कार अनुवर्तन, ठीक है ना, तो अनुवर्तन करने वाला संस्कार से। तो हम प्रोसेसिंग किस तरह से करें, उसको पकाएं कैसे। अभी आपने देखा कि जो मिलेट्स होते हैं वो टफ कोटिंग वाले होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं ना बहुत टफ होते हैं, तो इसको पकाने में बहुत टाइम लगता है, पचने में भी भारी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इफेक्ट लघु है, मतलब लघुता लाने वाला है बॉडी में, लेकिन पचने में हैवी है ये, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि छिलके की वजह से। तो वो छिलके के लिए इन्होंने बोल रखा है कि आपको यदि उसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू को यूज करना है तो वो आप 12 घंटे के लिए सोक करना चाहिए, 10 से 12 घंटे को इसमें पानी में भिगो दीजिए इसको, फिर उसके बाद इसको कुक करवाइए, तो उसका पूरा अच्छे से वो पाचन हो जाएगा, वो पचने में भी लघु हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि सोक करके फिर कुक करना है, ये सब आप जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, धन्वंतरी को नमन, पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धा सुमन, अति सम्माननीय मंच, सम्माननीय सदन। मंच का तो परिचय हो गया, कुछ लोगों के परिचय छूटे हैं, मैं चाहता हूँ परिचय हो जाए। हमारे बीच में आरोग्य भारती पूर्वी क्षेत्र के सह संयोजक हैं माननीय संग्राम सिंह जी, एक बार खड़े हो जाएं, परिचय हो जाए। हमारे बीच में आरोग्य भारती काशी प्रांत के उपाध्यक्ष माननीय रणवीर सिंह जी हैं, मैं चाहता हूं उनका भी। हमारे बीच में पवन जी हैं जो नगर प्रचारक हैं, मैं चाहता हूं उनका भी परिचय हो। आरोग्य भारती एक दृष्टि है, जैसा कि आपने महसूस किया कि आज हमारे इस मंच पे दो ऐसे वक्ता हैं जिनको मैं भी सुनना चाहता हूं। पहले डॉक्टर अशोक वासणे जी, जिनका परिचय आपने विधिवत सुना कि वो एक घंटा के लिए तो सोचना पड़ता है 100 बार। बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन के कार्य को करने वाले से माननीय अशोक भाई साहब राष्ट्र की सेवा के लिए पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिए और प्रचारक बन गए। आज हम उनको सुनना चाहते हैं। हमारे बीच में इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर वीके मिश्रा जी, जो स्वयं कृषि वैज्ञानिक और गेहूं पर इनका शोध है, मैं उनको भी सुनना चाहता हूं। अंग्रेजी में खुद सुना, ये मोटे अनाज पर आज हम उनसे सुनेंगे। इसी बीच में हमको कम समय में आरोग्य भारती का परिचय देना है, तो एक जानकारी के लिए बताएं, 2 नवंबर 2002 में केरल के कोच्चि में आरोग्य भारती की स्थापना होती है। 2 दशक पूरे हो गए, तीसरे में हम प्रवेश करते हैं। आरोग्य को लेकर के आरोग्य भारती काम करता है। यह क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, आइए संक्षिप्त में बात करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हमारा देश प्रतिवर्ष 24 लाख रुपए का विदेशी दवाई खा जाता है। देसी कितना खाता है इसकी गणना नहीं। जैसा कि आपने सुना कि पूरे विश्व का मधुमेह का केंद्र भारत बन रहा है और आगे हृदय संबंधित बीमारी का भी राजधानी बनने जा रहा है। इतनी दवाइयां खाता है, बीमार है और गंभीर बीमारियों में फंसता जा रहा है। क्यों? कहां से गलती हो गई, कहां से त्रुटि हो रही है? तो विचार किया गया, आयुर्वेद में झांका गया। आयुर्वेद के ग्रंथों में से पूछा गया कि वैद्य के क्या काम है, कौन सा कार्य है वैद्य का। तो वहां से पता चला कि वैद्य के 2 काम हैं। पहला काम है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य चिरकाल तक बना रहे ऐसा उपाय करना। बावजूद बीमार हो जाए तो इलाज करना वैद्य का दूसरा काम है। अपना भारत जो विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, पूरे विश्व को ज्ञान देता था, आज किस अज्ञान के चक्कर में फंस गया है और बीमार है। तुरंत एक प्रश्न उठता है, मैं विद्या मंदिर में खड़ा हूं तो पता नहीं क्यों मन करता है कि मैं उस इतिहास को भी स्पर्श करूं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप विश्वगुरु थे? आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हाइपोथेसिस नहीं, परिकल्पना नहीं,
सुनी सुनाई बातें नहीं, कोई प्रमाण है आपके पास कि आप विश्वगुरु थे? तो आइए मैं बताता हूं आपको, बहुत लंबा इतिहास नहीं बोलूंगा, संक्षेप में मैं आपको बता दूं इतिहास के बारे में। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। 1498 में वास्को डी गामा देश में आता है। 1503 में पुर्तगाल हमारे ऊपर आक्रमण करता है। अगस्त 1608 में अंग्रेज आते हैं। 1557 से 15 अगस्त 47 तक हमारे ऊपर राज्य करते हैं। और इस बीच में क्या करते हैं? तो एक विलियम एडम था जिसको एक काम सौंपा गया था कि भारत पे कैसे शासन किया जाए। तो उन्होंने ये काम सौंपा टीबी मैकाले को। टीबी मैकाले ने पूरे देश का भ्रमण किया और एक रिपोर्ट इकट्ठा किया। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में उसने 1780 पन्ने का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। वहां बहस होती है, प्रश्न होते हैं, वो रिकॉर्ड में आज भी रखा हुआ है। उसे पूछा गया कि वहां की शैक्षिक स्थिति क्या है। कहा भारत में 98% लोग साक्षर हैं। कहा तो हमारे देश में? कहा अपने मंत्री से पूछिए। तो शिक्षा मंत्री ने कहा उस समय वहां पे कि हमारे यहाँ 17 विद्यालय की क्या स्थिति है। तो मैकाले लिखता है और बोलता है, रिकॉर्ड में रखा हुआ है। कहा कि भारत में 7,20,000 राजस्व गांव हैं, हर गांव में गुरुकुल है और 15,800 उच्च शिक्षा के केंद्र हैं। तो कहा हमारे यहाँ कितना है? ये भी पूछ लीजिए अपने मंत्री जी से। तो मंत्री जी से पूछा गया कि आपके इस लंदन जो 3 राज्यों को मिलाकर के है कितने विद्यालय हैं? 240। हमारी जो स्थिति थी गुरुकुल की, फिर पूछा गया, वो लंबी बातें हैं, उस पर हम लंबी व्याख्यान नहीं करेंगे। फिर मैकाले ने सिद्ध किया जब तक हम इनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इन पे शासन नहीं कर सकते। हमारे विद्यालयों को बंद कराया गया, गुरुकुल को बंद कराया गया, निषेध किया गया, उसे उसको न्याय से विरुद्ध माना गया, संविधान के विरुद्ध माना गया और जिसने भी खोलने की चेष्टा की उसको मारा गया, पीटा गया, बंद भी किया गया। हमारे सारे शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अपने गौरव, अपने वैभव का ज्ञान होना चाहिए कि आप कौन थे। फिर आगे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए गुरुकुल में पढ़ाते क्या हैं? तो उन्होंने कहा 18 विषय पढ़ाते हैं। तो पहला विषय था गणित, और गणित में भी वैदिक गणित। फिर बताया मेटलर्जी पढ़ाते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं, फिर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं। फिर आगे बताया कि चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में भी 18 विषय बताया। और कांगड़ा विश्वविद्यालय के लिए बताया कि वहां पे राइनो प्लास्टिक सर्जरी इसकी विशेषज्ञता थी। इतना वैभवशाली अपना देश, ये कब की बात है, किस दिन कर रहा है? 2 फरवरी 1835 को ये बात बोलता है टीबी मैकाले ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। ये रिकॉर्ड है, उन्होंने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है, एक अंग्रेज ने लिखा है, हमारा इतिहास लिखा है। वेलसांग आया था भारत, उसने लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना कठिन था, वहां प्रवेश की परीक्षा होती थी। आगे ये भी लिखा कि वहां 300 अध्ययन के कक्ष थे। ये भी लिखा कि वहां पुस्तकालय की 9 मंजिल की बिल्डिंग थी। आगे ये भी लिखा कि 50 ऐसे विद्वान थे जो 50 विषय के आचार्य थे। ये बात तो 1800 की बात है ना। आइए थोड़ा सा पिछले चलते हैं। हमारे यहाँ भगवान राम के छोटे लड़के तक्ष के नाम से तक्षशिला विश्वविद्यालय 3000 वर्ष पहले, ऐसा इतिहासकार लोग कहते हैं, कम आते हैं। उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि, ये सब 1193 में नेस्त नाबूद कर दिए गए। तब ये 1835 में हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या थी। आइए अब सीधे विषय पे आते हैं। तो आयुर्वेद में क्या लिखा है? तो बताया कि पहला काम है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहे ऐसा उपाय बताना, बीमार हो जाए तो इलाज करना वैद्य का दूसरा काम है। तो हमारे यहाँ अगर पहला अध्याय आपका ठीक हो तो दूसरे की नौबत नहीं आएगी। आज क्या हो गया है? पहला अध्याय समाप्त। अब जब आप रोगी होते हैं तो चिकित्सक के पास जाते हैं। पहले स्वस्थ और स्वास्थ्य की परंपरा थी, वर्तमान समय में रोगी और चिकित्सा की व्यवस्था आ गई। पूरा देश दवा खाने लगा। तो आरोग्य भारती केवल यही बताने आपके दरवाजे पे आया है कि स्वास्थ्य के कुछ सूत्रों का पालन करके आप नैरुज्य, निरोगता को प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कल्पना करिए, दैनिक भोगी कर्मचारी रिक्शा चलाता है, तांगा चलाता है, ऑटो चलाता है, फेरी लगाता है, गाड़ी लगाता है, क्या करना पड़ेगा उसकी चला है
इसमें केवल प्रथम श्रेणी पास होने से काम नहीं चलेगा, डिक्टेंशन पाने से भी काम नहीं चलेगा। आज आपको 90, 91, 92, 97, 98, 100% अंक प्राप्त करने होंगे। एक बीमार व्यक्ति क्या है, स्वास्थ्य क्या है? तो एक आदर्श स्वास्थ्य की परिभाषा है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुआ। ये आदर्श स्वास्थ्य आपको बहुत जरूरी है। बिना इसके आप किसी प्रतिस्पर्धा को और अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। हमारे मनुष्यों ने क्या कहा? हमारे मनुष्यों ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। बिना आरोग्यता के ये सब नहीं प्राप्त होगा। आगे चलिए, जल्दी जल्दी बातें हम आपके सामने कहेंगे। और एक बात और कहेंगे, आज हम केवल आपको मोटिवेट कर रहे हैं आरोग्य भारती के परिप्रेक्ष्य में। फिर किसी दिन आपको बुलाना होगा और हमारी पूरी टीम को सुनना होगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। और एक बात और बता दें, हमारे आरोग्य भारती में सदस्यता की